respected Shri Vivek Atre sir, who has come here for give us the wonderful session. And I would like to request, our Secretary Brigadier Anil Sharma sir to please come here and address among the students about the seminar which is going to conduct here. Sir, please come. And also to come here on the stage. I would request our Secretary GP, Dr. Brigadier Anil Sharma sir, to come here and address among students regarding this event. Our distinguished guest, Shri Vivek Atre sir, Principal Dr. Shyam Pandey, Professor in charge academic, Dr. Anjana Verma, and HODs and faculty, and students of our CVS. Jai Guru, Jai Hind. Jai Hind seemed as muted as happens when we are starting slightly behind schedule. So let's have it once again. Jai Guru, Jai Hind. Yeah, that's better. Thank you. Now it's really, we are very fortunate that today we have with us a very, very eminent educator, a very learned person who has been a leading contributor in the education in Haryana as an IAS officer, and thereafter joined the education field. He is a tremendous motivator, an ardent follower of our Gurudev, has been instrumental in setting up a center of theology in Shulini University, and he still happens to be a visiting professor out there, and he has helped number of people change their life through his interaction with them as a motivator and a leader. And by motivation, I do not mean that we use rhetoric and make your adrenaline rise and pumping of fists and all that. That kind of a motivation lasts only for moments, maybe 1 hour or 2 hours. Motivation in my mind is one, when someone shows us someone lights the lamp on the pathway so that we know where this pathway leads to,
which are the milestones and which are the pitfalls. And when we learn to identify them, then we can really feel motivated and be grateful to our mentor. And when that process becomes more intense, so intense that we go on that pathway irrespective of pitfalls or milestones, just keeping our focus at the goal, then we are inspired. As some of you who would have attended day before session by Swami Shri Chidanand Maharaj would have realized that when you are inspired like this, all these things do not matter. So with this, it is over to Shri Vivek Atre so that your path also gets enlightened by his experience. Thank you. Jai Hind, Jai Guru. थैंक यू सो मच ब्रिगेडियर साहब. मैं हिंदी में ज्यादा बोलूंगा, थोड़ा सा इंग्लिश बोलूंगा. घबराने की जरूरत नहीं है किसी को. एक एक शब्द आपको समझ आएगा मैं क्या बोलूंगा. आई एम थैंकफुल टू द प्रिंसिपल श्याम पांडे जी फॉर सेटिंग दिस अप ऑन अ वेरी शॉर्ट नोटिस. परसों ही हमारी बात हुई और आज ये सेशन भी है और इसके बाद स्कूल बॉयज और गर्ल्स का भी सेशन, स्कूल बॉयज का सेशन है शायद इसके बाद. और ब्रिगेडियर शर्मा जी ने जो इंट्रोड्यूस किया, दैट वाज अ वेरी वार्म इंट्रोडक्शन. थैंक यू सो मच. आई वाज ओनली वरीड दैट द होस्ट ऑफ द डे, द एमसी, वुड रीड आउट माय होल इंट्रोडक्शन. वो टाइम काफी वेस्ट हो जाता उसमें. तो बाद में आप गूगल कर लेंगे. ब्रिगेडियर साहब ने जो क्रक्स है, जो निष्कर्ष है, वो आपको बता दिया. एक रिक्वेस्ट है आपसे कि जितनी देर मैं बोलूंगा अगर कुछ बात समझ ना आए तो आप हाथ खड़ा करके उसी वक्त मुझे रोकेंगे, पूछेंगे. जैसे ये मुझे पता नहीं चला, क्या इसका क्या तात्पर्य है, मतलब है. ठीक है. इंग्लिश मुझे आती है, हिंदी भी आती है, मैं मिक्स कर लूंगा. ठीक है. जो मैं बोलूंगा आपको समझ आएगा मुझे लगता है. सो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट, टॉपिक क्या है? इमर्जिंग विक्टोरियस का मतलब क्या है? विक्टरी का मतलब जीत, विक्टोरियस का मतलब जीतने वाला, इमर्जिंग का मतलब किसी मुश्किल में से निकल के आना. इमर्ज, एक होता है मर्ज, मर्ज का मतलब मेल, इमर्ज का मतलब निकल के आना. विद कामनेस अमिड्स्ट केओस, ये भी लिखो. कैसे निकल के आना? शांत मन के साथ. कामनेस. अमिड्स्ट केओस का मतलब है उस हालात में जहां सब गड़बड़ हो रहा है वहां भी शांत मन के साथ सक्सेसफुल होना. ये टॉपिक. तो गड़बड़ का मतलब क्या है? केओस का मतलब क्या है? जीवन जैसे चल रहा है वो उस तरह से नहीं चल रहा जैसे हम प्लान करते हैं. 2+2 is 4, बट लाइफ इज अनप्रिडिक्टेबल. अनप्रिडिक्टेबल का मतलब जो हमने सोचा वो जरूरी नहीं है वो होगा या नहीं होगा. हमें पैंडेमिक का पता नहीं था. कोई अगर वो कहता है एस्ट्रोलॉजर कि मैंने तो बोल दिया था कि पैंडेमिक होगा, तो तुक्का ही है, किसी को पता नहीं था. तो हालात क्या है हमें पता नहीं, आगे क्या होने वाला. लेकिन परमहंस योगानंद जी ने भी कहा, stand unshaken amidst the crash of breaking worlds. आप खड़े रहें स्थिर, अनशेकन, बिना हिले, amidst the crash of breaking worlds. दुनिया टूट फूट रही है आपके इर्द गिर्द, लेकिन आप खड़े मजबूत. योगानंद जी ने बोला. मैंने यही टॉपिक अभी IIT मद्रास में लेक्चर दिया इसी पे, जो कि वीडियो है, विच आई विल शेयर विद यू, काइंडली शेयर विद द बॉयज एंड गर्ल्स. उस वीडियो में मैंने थोड़ा मेडिटेशन भी उनको कराया. आज मेडिटेशन की जरूरत नहीं है, आपको उतनी जरूरत नहीं है मेडिटेशन का मुझे बताने की, क्योंकि आप फिर भी थोड़ा बहुत जुड़े हुए हैं. वो लोग अभी IIT मद्रास में उनको एक ही तरफ थे, वो IIT की तरफ थे. मेडिटेशन वाली बात मैं इतनी नहीं करूंगा आज. आपके इर्द गिर्द मेडिटेशन को सीखने जानने के लिए बहुत से जरिए हैं.
बहुत से एवेन्यूज हैं, तो आप उनको चुन सकते हैं। मैं किस्म किस्म के शब्द इस्तेमाल करता हूं, यूज करता हूं। अगर आपको कोई शब्द अच्छा लगे तो उसको मेंटली या अपने किसी फोन में नोट कर लेना, अगर अच्छा लगे तो उसको बाद में जाके उसका मीनिंग देख लेना, ठीक है। इमर्जिंग विक्टोरियस विथ कामनेस अमिड केओस, यानी कि उथल पुथल हमारे आसपास हो रहा है, लेकिन हम शांत मन से जीत हासिल करें, ये है। अब मैं पूछूंगा लाइफ का गोल क्या है, लाइफ का एम क्या है? अगर एक शब्द में बताएंगे तो मुझे खुशी होगी, हाथ खड़ा करेंगे। व्हाट इज द गोल ऑफ लाइफ? नॉट योर लाइफ, योर लाइफ गोल में बी टू बिकम अ टॉप साइंटिस्ट और इंजीनियर और कंप्यूटर साइंटिस्ट। व्हाट इज द गोल ऑफ लाइफ? रेज योर हैंड। यस, व्हाट्स योर नेम? सर उज्जवल मिश्रा। उज्जवल बताइए। सर अचीविंग सैल्वेशन इज द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ। ओके, सैल्वेशन, सेल्फ रियलाइजेशन। वर्ल्डली गोल क्या है? सैल्वेशन एंड सेल्फ रियलाइजेशन इज द पर्पज ऑफ लाइफ। एज ए डेवोटी ऑफ योगानंद जी, एज ए डेवोटी ऑफ गॉड, you will know this. What is the goal in this world? हाथ खड़ा करें, वन वर्ड में बताएं जी। पीछे नाम बताइए। मोहित गुंजन। और टू नाम दोबारा बताइए। मोहित गुंजन। मोहित, यस। और टू ईज द वर्क ऑफ आवर सराउंडिंग मेड our future coming generation. Okay, good, good, good. But I'm still looking for only one word. यहाँ पे कोई हाथ खड़ा था अभी। Yeah, what's your name? शैलेश कुमार। शैलेश, goal of life? So to gain peace. मतलब पीस, पीस। ओके, एनी अदर? पीस अब ये नजदीक आए हैं, जो गोल मैं सोच रहा हूं उसके नजदीक है। उन्होंने बताया सेल्फ रियलाइजेशन, बढ़िया है। उन्होंने बताया टू मेक अदर्स लाइफ कंफर्टेबल, वो भी ठीक है। पीस के साथ क्या जुड़ा हुआ है? और यस, पीस ऑफ सोल। पीस ऑफ सोल, एक शब्द पीस से जुड़ा हुआ। सेटिस्फैक्शन, एक और किसी ने अभी बोला यहाँ। सर पीस ऑफ माइंड। पीस ऑफ माइंड, यहाँ पे क्या था? हैप्पीनेस किसने बोला? हाथ खड़ा करें। व्हाट्स योर नेम? हर्ष का मतलब क्या होता है? खुशी। हैप्पीनेस का मतलब क्या होता है? The purpose of life is to find happiness, and the purpose of life is to find God. Satisfaction, success, peace are all aspects of happiness. लेकिन एक व्यक्ति का नाम बताएं जो सक्सेसफुल है पर हैप्पी नहीं है। ऐसा एग्जांपल, अब आप ब्राइट बच्चे हो, 2023 में हम हैं। वर्ल्ड में ऐसी एक पर्सनालिटी बताइए जो कामयाब है पर कभी हंसते हुए नजर नहीं आए। एलॉन मस्क, बहुत अच्छा सवाल जवाब है। उनसे भी ज्यादा दुखी आत्मा कौन है? थोड़े साल पहले तक थे वो पावर में। राहुल गांधी। कभी वो मुस्कुराए नहीं, कभी वो मुस्कुराए नहीं। देखो, मैं तो आईएएस ऑफिसर हूं, मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं करता, मैं बहुत केयरफुली चलता हूं। अमेरिका के प्रेसिडेंट पुराने वाले डोनाल्ड ट्रंप को हंसते हुए देखा किसी ने? वो मतलब वो फोटोशॉप किया होगा किसी ने स्माइल। अगर आप सक्सेसफुल हैं, पावरफुल हैं, ध्यान से सुनिए, अगर आप मोस्ट पावरफुल मैन इन द वर्ल्ड हैं, जो कि यूएस प्रेसिडेंट को जाना जाता है, लेकिन आप खुश नहीं हैं, तो उस सक्सेस का जो मीनिंग है वो अधूरा है। एक गोलगप्पा वाला है, चंडीगढ़ में रहता हूं मैं, पंचकुला चंडीगढ़। मैं उनको 10-12 साल से देख रहा हूं, गाड़ी में मैं क्रॉस करता हूं, कई बार क्रॉस करता हूं, और जब भी क्रॉस करता हूं वो मुस्कुरा रहे होते हैं। बुजुर्ग हो गए हैं, गोलगप्पे बेचते बेचते, कभी दुखी नजर नहीं आए, कभी मुस्कुराहट के बिना नजर नहीं आए, ऑलवेज स्माइलिंग। आई नेवर मेट हिम। नॉर्मली गाड़ी वाले लोग वहां गोलगप्पे खाने के लिए रुकते नहीं हैं, क्योंकि उनके पास जो डब्बा है, जो पानी है, वो हम देख के थोड़ा सा दौड़ा जाते, बीमार हो जाएंगे।
जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर हैं वो वहां रुक के खाते हैं गोलगप्पे, 5 रुपया 4 रुपया ऐसा रेट है। मैंने उनके बारे में एक आर्टिकल लिखा उनको बिना बताए कि एक ऐसा व्यक्ति है जो गरीब है, सड़क के किनारे गोलगप्पे बेचता है और खुश नजर आता है, और डोनाल्ड ट्रंप खुश नजर नहीं आते। सोचने की बात है ना। मोस्ट पावरफुल मैन एंड ही इज रिचर देन बराक ओबामा एंड जो बाइडेन। ट्रंप इज रिचर पर्सनली, पैसा भी है पावर भी है, अभी भी दोबारा आने के ताक में है 4 साल के बाद। 4 साल हो गए, दूसरा आ गया, अब कहते हैं दोबारा मेरे 4 साल और बाकी है। गोलगप्पे वाला खुश है। यू आर नाउ कॉलेज स्टूडेंट्स, यू हैव टू थिंक अबाउट लाइफ। I stopped the car after writing the article. I gave him a copy of the article. उनको समझ नहीं आया मैं क्यों रुका, उनको लगा मैं उनको हटाने के लिए आया हूं। लाल बत्ती वाली गाड़ी थी तब, 5-6 साल पहले की बात है। वो उसने सोचे ये तो हटाने वाले लोग आ गए ना, जो एमसी वाले आते हैं ना, रेडी वालों को हटा देते हैं। मैंने बोला वो मेरा काम नहीं है, तो कोई और आएगा, पर आप खड़े रहो। आपको ये मैं बताने आया हूं कि आप मुझे इंस्पायर करते हो, मुझे मोटिवेट करते हो आप अपनी मुस्कुराहट से। मैं आपको देखता हूं, अब पैसा ज्यादा नहीं है, कंफर्टेबल भी नहीं लगते। गरीब आदमी रुक के गोलगप्पे खाता है, वो कितने पैसे देता होगा? दिन में 200 रुपया कमा लेते होंगे शायद, 300। चंडीगढ़ थोड़ा संपन्न जगह है, फिर भी इससे ज्यादा नहीं। गरीब आदमी रुकता है, मुस्कुराहट सबसे ज्यादा। तो मैंने उनसे पूछा उस दिन रुक के, मैं कहा क्या बात? कहते सर मुझे भरोसा भगवान पे, 2-3 बच्चे उनकी शादी में कर दूं, हो जाएगा, कॉन्फिडेंट। हैप्पीनेस कहां से आती है? हैप्पीनेस जो गोल है हमारा, वो कहां से आ रहा है? अंदर से आ रहा है। एक गोल होता है लाइफ का, कई लोग कहते हैं पैसा कमाओ, पावरफुल बनो, फेमस हो जाओ। मनी, पावर एंड फेम। मनी, कॉमा, पावर, कॉमा, फेम। आजकल कॉमा यूज नहीं करता, मतलब 3 अलग अलग चीजें हैं। अगर मनी और पावर और फेम हमारा गोल है, पर हम हैप्पी नहीं है इनके जरिए, तो कहीं ना कहीं कमी है, अंदर की बात गलत हो रही। मन की बात है वो, उसमें कुछ गड़बड़ है। तो यानी कि हमारा जो इनर बैटल है वो हार रहे हैं हम, अगर हम दुखी आत्मा है। क्या बोलते हैं बच्चे? रोंदू टाइप। रोंदू टाइप बंदा होता है ना हमारे साथ कोई, जो बिना वजह दुखी है। एक ही सिचुएशन में 2 व्यक्ति, एक दुखी एक खुश, सेम सिचुएशन, सेम इनकम, सेम फैमिली सिचुएशन, सेम प्रॉब्लम्स, वन हैप्पी वन सैड। अंदर की बात है ना, एटीट्यूड। हमारा नजरिया, रवैया, हमारा एटीट्यूड, कॉन्डक्ट क्या है, ये डिपेंड करता है। तो अगर मैंने ठान ली कि मैंने तो खुश ही रहना है, कुछ भी हो जाए, हर्ष की तरह, नाम चाहे हर्ष हो या ना हो, वी कैन बी हैप्पी कम वॉट मे, स्टैंड अनशेकन अमंग्स द, क्या बोला अभी योगानंद जी ने, क्या बोला था? स्टैंड अनशेकन अमंग्स द क्रैश ऑफ ब्रेकिंग वर्ल्ड। सब टूट फूट रहा है लेकिन हम मजबूत हैं। तो हमारे अंदर की लड़ाई, मोटिवेशन इज विद इन। सो मैं मोटिवेशनल स्पीकर हमारे आईएएस से रिजाइन कर दिया। रणधीर अलाहाबादिया का नाम किसने सुना? हाथ खड़ा करें। सब बैक बेंचर्स में सुना है, फ्रंट बेंचर्स में नहीं सुना। बाई चांस, वो तो बैक बेंचर बाई चांस है ना, ये आपकी क्लास थोड़ी है। वो तो टॉपर भी बैठ सकते हैं पीछे, मैं मजाक कर रहा हूं। रणधीर अलाहाबादी का लिखने में बियर बाइसेप्स, इंस्टाग्राम पे बहुत फेमस इन्फ्लुएंसर, यूट्यूब पे 27, अभी बात नहीं करनी है, 27-28 साल का है, आपसे थोड़ा ही बड़ा है।
जब आपकी उम्र का था तो बियर और बाइसेप्स में था, अभी मेडिटेशन में है, अभी विक्ट्री में है, अभी सक्सेस में है, हैप्पीनेस में है, अभी समझ रहा है बात को। उसने मुझे इनवाइट किया एक इंटरव्यू के लिए, जो कि आप बाद में देखना यूट्यूब पे, अगर नहीं देखा तो बाद में देख लेना, यूट्यूब पे है। ये मेरा नाम है विवेक आत्रेय, आप सर्च करेंगे तो मिल जाएंगे। रणधीर इलाहाबादिया ने जो मुझे इंटरव्यू किया, वो देख के बहुत से लोग इंडिया में अब आपकी एज के या उनकी एज के थोड़े बहुत वो मेडिटेशन शुरू कर रहे हैं। हालांकि मैं कोई योगी, हम सब हैं, लेकिन मैं कोई मंक तो नहीं हूं, मोनास्टिक तो नहीं हूं, मैं स्वामी जी तो नहीं, मैं तो प्रैक्टिकल आदमी हूं वर्ल्ड में। उसको देख के सब लोग देख रहे हैं कि ये अगर मेडिटेशन करते हैं दोनों, मैं और वो, तो हम मेडिटेशन की बात कर रहे हैं, तो हमें भी करनी चाहिए थोड़ी बहुत। तो हर चीज का एक दौर होता है, एक वक्त होता है। अभी आपका वक्त है पढ़ने का, कॉलेज स्टूडेंट अच्छे से अपना रोल निभाने का, और फिर प्लेसमेंट या करियर के स्पेलिंग होते हैं CAREER, है ना। ये मैं चंडीगढ़ वालों को भी बताता हूं कि वो कैरियर नहीं होता, वो करियर होता है। करियर में कामयाबी पाना आपका फर्ज है ना, फर्ज, ये ड्यूटी। पेरेंट्स भी बोलते हैं कि अच्छा पढ़ो, करो, कोशिश कर रहे हो आप, लेकिन दौर होता है हर चीज का। उसके बाद हम ट्रेडमिल में आ जाते हैं। ट्रेडमिल क्या होता है? जिम में होता है ट्रेडमिल, उसके ऊपर लोग भागते हैं लेकिन आगे नहीं जाते कहीं। तो जिंदगी भी ट्रेडमिल की तरह है, हम भाग कहां रहे, फिटनेस तो हो रहा है ट्रेडमिल से, लेकिन आगे नहीं बढ़ रहे। तो जिंदगी में हम जॉब के लिए हम कोशिश जरूर करें, लेकिन हम भगवान को, मेडिटेशन को साथ अभी रखें। जिस वक्त हम स्टूडेंट हैं तभी हम रखें उनको। तो ये जो कामनेस वर्ड है, इस पे थोड़ी सी बात करते हैं। मैं थोड़ा वॉक अराउंड करता हूं। आवाज आ रही है अभी पीछे? क्योंकि मैं स्पीकर हूं, मेरी आवाज थोड़ी सी बुलंद हो गई। कामनेस क्या होता है? शांत। काम होने के तरीके कौन बताएगा मुझे? एक तरीका कोई हाथ खड़ा करके बताए। हाउ टू बिकम कामर? कामर मीन्स मोर काम। यस, व्हाट्स योर नेम? मोहित बताओ। सर, वी हैव टू बी डिसिप्लिन, रूटीन फॉलो करना पड़ेगा, स्थिरता लाना पड़ेगा, थोड़ा माइंड को मेडिटेशन। ये तो बहुत सारे हो गए, एक दो ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया। मेडिटेशन मेडिटेशन इज वन वे टू बिकम काम. Yoga is one way to become calm. Any other? Sir, sports. Very good. Sports कौन बोला? Yes. What's your name? Rishabh sir. Rishabh. Yes. रिजल्ट्स पे हम लोग ध्यान ना दे, कोई कुछ भी कर रहे तो उसके रिजल्ट्स के बारे में ना सोचे तो हम। क्या नाम है? आयुष अंकित। आप लोग बहुत जबरदस्त बैच है, तालियां हो जाए सबके लिए। योगा महाविद्यालय में पढ़ना आपकी किस्मत है, हमारी नहीं। हम तो बाद में आए ना इस बात में। ये जो आप बातें कर रहे हो, मैं आपको सही बता रहा हूं मैडम, मैं आपको सही बता रहा हूं कि इस किस्म के जवाब मुझे इंडिया में नहीं मिले। इसीलिए दोबारा ताली हो जाए। बात की इन्होंने, ये मुझे पूरे इंडिया में नहीं हुई, सिर्फ एक धार्मिक प्रवृत्ति के लोगों में हुई। इट्स वेरी गुड। लेकिन जिंदगी की कामयाबी भी जरूरी है, पैसा भी कमाना है जितना जरूरी है, पावरफुल भी होना है जितना आवश्यक है, और फेमस भी होना है अगर हो सकता है। विराट कोहली या शाहरुख खान ना सही, शाहरुख खान भी थोड़े डाउन है आजकल, पर पिक्चर कौन सी आई है? आपकी जीके अच्छी है। फिनलैंड का कैपिटल पूछूंगा तो मुश्किल हो जाएगी। फिनलैंड का कैपिटल पूछूंगा तो मुश्किल हो जाएगी ना। शाहरुख खान की मूवी तो पता है। पॉइंट क्या है कि कामनेस आता है मेडिटेशन से, स्पोर्ट्स वेरी गुड, ज्यादा चिंता ना करने से, एक्सरसाइज एक्सेट्रा,
अगर हम अपना काम करते रहे और रिजल्ट की ना सोचे तो भगवत गीता में भी ये लिखा है। लेकिन हम इंसान हैं, इंसान के अंदर एक यर्निंग होती है रिजल्ट की, और हम ओवर थिंकिंग भी करते हैं। जितना सोचना चाहिए उससे ज्यादा सोचते हैं सभी लोग, चाहे वो बच्चे हो बड़े हो। ओवर थिंकिंग आज का एक प्रॉब्लम है। पुराने वक्तों में लोग, अभी भी हिमाचल में, मेरी वाइफ हिमाचल से, नीना जी जानते हैं कुछ लोगों को यहाँ, वो नीना के रिश्तेदार या वहां हिमाचल के लोग धूप सेकते हैं 2-3 घंटे बिना कोई चिंता के, काम भी करते हैं, फोन नहीं देखते, इस बीच में धूप ही सेकते हैं, ठंड होती है ना ज्यादा। यानी कि हम लोग खाली बैठते हुए सोचते ज्यादा है। अगर हम 1 सेकंड भी खाली मिला, मैं भी गिल्टी हूं, सीधा फोन उठा के देखने लग जाते हैं। When was the last time you sat without doing anything? कुछ ना कुछ करते रहते हैं, कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, और जो सोच होती है वो ज्यादातर हमारी काफी नेगेटिव होती है। हम वरी ज्यादा करते हैं, और योगानंद जी ने बोला वरी इज अ ब्रेक, BRAKE वाला ब्रेक, वो वाला ब्रेक नहीं, BREAK वाला, AK वाला नहीं। क्या फर्क है दोनों? जो गाड़ी में ब्रेक लगता है वो वरी वाला ब्रेक है। आप एक्सेलरेटर दबा रहे हैं लाइफ का, और साथ में आप चिंता करके ब्रेक भी लगा रहे हैं, तो गाड़ी कैसे चले, झटके लगेंगे। सो वी हैव टू स्टॉप ओवर थिंकिंग एंड बी काम। जब आप कुछ करने वाले, मान लो आपका इंटरव्यू है, वन डे यू विल अपीयर फॉर एन इंटरव्यू, जॉब इंटरव्यू मान लो, एंड यू आर वरिंग, you are so worried that you will not perform at your best in the interview because you are worried. Otherwise you are very good, सब कुछ आता है आपको, लेकिन चिंता के कारण आपकी परफॉर्मेंस वहां पे, नर्वसनेस के कारण जितनी होनी थी उसकी 50% रह गई। तो आपकी जो चिंता है वो तो सच हो जाएगी, फिर चिंता सच हो जाएगी बिकॉज यू आर वरिड। समझ आई? चिंतित होने के कारण जो आपके वर्स्ट फियर्स थे वो सही निकल आए। सो वी हैव टू encourage our calmness. Supposing just now a chipkali fell from the floor onto the, or from the ceiling to the floor, or there is a snake in the room. Supposing उस दिन स्वामी जी ने इनॉग्रेशन में बोला, कुछ लोग थे कि आपके कैंपस में 5 टाइप्स के स्नेक्स हैं। मुझे नहीं पता, 5 टाइप्स के स्नेक्स, 6 टाइप्स के स्पाइडर होंगे, डरना नहीं। पॉइंट क्या है कि हम क्या सोच रहे हैं वो हमारे मन का, हमारा ही फैसला है। हम क्या डर के बारे में सोच रहे हैं, घबराहट के बारे में सोच रहे हैं, डिफीट के बारे में सोच रहे हैं, लड़ाई के बारे में सोच रहे हैं, तो हमारा ही मन सोच रहा है। और एक ही सिचुएशन में एक आदमी शांत, एक आदमी चिंतित, तो चॉइस। ओके, नाउ आई गिव यू अ फॉर्मूला। सक्सेस इज हैप्पीनेस, ट्रू सक्सेस इज ट्रू हैप्पीनेस, बट वी हैव टू बी सक्सेसफुल इन आवर करियर। ऐसा नहीं कि हम पेड़ के नीचे बैठ के मेडिटेशन करेंगे। एक स्वामी जी थे, अब स्टोरी टाइम, लिसन टू द स्टोरी। एक स्वामी जी थे जो पेड़ के नीचे बैठ के मेडिटेशन करते सारे टाइम, 24 घंटे। किसी ने उनको खाना खाते नहीं देखा, सोते नहीं देखा, सिर्फ मेडिटेशन। एक गांव वाला उनके पास जाता है, स्वामी जी आपके पास सुना एक डायमंड है। डायमंड क्या होता है? हीरा। स्वामी जी वो डायमंड मुझे दे दीजिए। स्वामी जी एक झोले में से डायमंड निकालते हैं, उसको दे देते हैं, और वो लेके चला जाता है। स्टोरी है। एक हफ्ते बाद वो व्यक्ति वापस आता है, बोलता है स्वामी जी प्लीज टेक दिस डायमंड बैक, आई डोंट वांट इट। इज इट व्हाई? इज इट नॉट कॉस्टली? इज इट नॉट यूजफुल टू यू? इज इट नो, इट्स वेरी यूजफुल, वेरी कॉस्टली। मेरे कई
जो जनरेशन में पूछते हैं वो इसके कारण अमीर हो जाएंगे, लेकिन आप इसको वापस ले लीजिए। कहते क्यों? कहते स्वामी जी क्योंकि जो आपने मुझे ये डायमंड बिना झिझक बिना सोचे दे दिया तो मैं सो नहीं पा रहा, ये सोच के कि इन्होंने दिया क्यों मुझे, मैं कभी सो नहीं पाऊंगा। मैं मुझे समझ नहीं आया, आपने मैंने कहा डायमंड दे दो, आपने डायमंड दे दिया। ये स्टोरी स्वामी स्मरणानंद जी ने सुनाई हम सत्संग में, और उन्होंने ये कहा कि स्वामी जी के पास डायमंड से कुछ ज्यादा बड़ी चीज थी, इसीलिए वो डायमंड दे पाए। आपके पास जो 20 रुपए है तभी किसी को 10 रुपए दोगे ना। तो अगर डायमंड उनके पास, ऐसा नहीं है कि 10 डायमंड है उनके पास, मतलब कि कुछ बड़ी चीज उनके पास है जो कि है इनर पीस, हैप्पीनेस, कामनेस। व्हेनेवर ही नीड्स अ डायमंड ही विल गेट इट। ऐसी प्रैक्टिकल बात नहीं है। मैं नहीं बोलता आप उस तरह बनो, मैं बोलता हूं हमारी चिंता व्यर्थ है। कई चीजों की हम चिंता ऐसी करते हैं, वो होती नहीं है। कई बार मम्मी चिंता करती है ना, वो घर नहीं आया अभी तक, मोबाइल स्विच ऑफ है। आप लोग जब लेट हो जाते हो घर जाने में, मोबाइल ऑन रखा करो। चिंता करती है। पहले तो मोबाइल नहीं होते थे, मम्मी यूज्ड टू वेट एंड पीपल यूज्ड टू बी लेट, सो मदर्स वरी इज लॉजिकल, है ना, वो तो जायज है ना। लेकिन हम किस बारे में चिंता करते हैं? एग्जाम में नंबर कम आ जाएंगे, जॉब नहीं लगेगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वी वरी अननेसेसरली। इंस्टेड ऑफ वरिंग, गेट बिजी वर्किंग। ओके, एनी क्वेश्चन टिल नाउ? सर यस, नाम बताओ। सर जगदीश। जगदीश, हाँ। सर ओवर थिंकिंग और स्मार्ट थिंकिंग में कैसे पता करेंगे हम लोग कि स्मार्ट थिंकिंग कर रहे हैं कि ओवर थिंकिंग कर रहे हैं? आप ये समझ लो कि अगर नेगेटिव सोच है तो वो ओवर थिंकिंग है। जब ओवर कोई चीज होती है, लिमिट से ज्यादा होती है, वो गलत ही होती है। और जो स्मार्ट थिंकिंग है वो पॉजिटिव थिंकिंग है। स्मार्ट थिंकिंग का मतलब है कि मैं अपने करियर के बारे में प्लानिंग कर रहा हूं, लेकिन कितनी बार प्लानिंग करोगे आप दिन में? स्मार्ट थिंकिंग है कि आपने बस में जब बैठे हो, कहीं पे जा रहे हो, आपने अपने साथी से उस टाइम बात नहीं की, आप अपने करियर के बारे में सोच रहे हो। 15 मिनट सोच लिया, 20 मिनट सोच लिया। अगर आप पूरे दिन सोचे जा रहे हो, इसका मतलब ओवर थिंकिंग, इसका मतलब वो चिंता है। स्मार्ट थिंकिंग का मतलब है कि यू आर प्लानिंग वेल। ओवर थिंकिंग का मतलब है यू आर थिंकिंग सो मच। एक आपको ओवर की बात बताता हूं, विच विल मेक इट क्लियर। वुड कटर क्या होता है हिंदी में? क्या बोलते हैं वुड कटर? लकड़हारा। एक दिन मैं हिंदी में बोल रहा था टॉक में, बहुत टॉक्स देता हूं ना, हफ्ते में 4-5 हो जाती है। जैसे आज एक है, एक और भी अभी स्कूल वालों के साथ। हफ्ते में 4-5 बार ही मेरा लेक्चर होता है कोना में। तो मैंने गलती से लकड़हारा की जगह लकड़ बग्गा बोल दिया। यार ये तो पढ़ा था मैंने, कुछ गलत हो गया। गलती सबसे होती है ना, और गलती मान लेनी चाहिए अपनी, उसमें ह्यूमिलिटी है। एक आइंस्टाइन के ड्राइवर की स्टोरी याद रखना, मैं सुनाऊंगा, पहले शायद सुनाई होगी, फिर भी सुन लेना दोबारा। सो एक वुड कटर, लकड़हारा, एक जंगल में लकड़ी काटने को जाता है। आपने कहानी सुनी होगी। 8 बजे सुबह से रात के 8 बजे तक उनको बोला गया जितनी लकड़ी आप काट सकते हैं वो आपकी है। सो ही इज कटिंग वुड मैडली, पागलों की तरह। जितनी लकड़ी मिलेगी उतने अमीर हो जाएंगे। 8 बजे से 4 बज जाते हैं शाम के, चकनाचूर हो जाता है आदमी, शरीर थक जाते हैं बुरी तरह, खून भी आ रहा है। जो कुल्हाड़ी है वो ब्लंट हो गई, तीखी नहीं रही धार, एक्स। एक पासर बाय, वहां से गुजरने वाला व्यक्ति, वो कहते हैं वाई डोंट यू शार्पन योर एक्स, वाई डोंट यू रेस्ट अ वाइल, रेस्ट फॉर हाफ एन आवर, देन कट वुड अगेन टिल 8 PM. Understood? He said, I have no time. I want to cut more wood. I have no time to sharpen my axe. I have no time to rest. 5:30 बजे उनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, कई बार ओवरडू कर देते हैं। जब हम अपने आप को पढ़ाई पे बिठा रहे हो, आपका मान लो एग्जाम में आप 10 घंटे पढ़ रहे हो, उसमें से आउटपुट आपका 2 घंटे,
फायदा क्या है? इससे अच्छा हम 4 घंटे ही पढ़ें और 4 घंटे पढ़ें और बाकी टाइम हम अपने आप को स्पोर्ट्स, फिटनेस, मदर के साथ बात करो, फ्रेंड्स के साथ करो. टाइम वेस्ट नहीं करना. कीप योर माइंड फ्रेश. प्लस डोंट ओवरडू द क्वेस्ट फॉर मनी, पावर एंड फेम. ज्यादा ललक उसकी तरफ कोई जरूरत नहीं. कितना पैसा चाहिए आदमी को? कितनी बड़ी गाड़ी चाहिए? हर जो इस हॉल में जो भी बैठा है, एक दिन आपके पास गाड़ी होएगी होगी. जॉब भी होगा, करियर भी होगा, पर कितनी बड़ी गाड़ी चाहिए हमें? यार चंडीगढ़ जहां से मैं आता हूं वहां ज्यादा लोग गाड़ियों के पीछे भागते हैं. जो सबसे छोटी गाड़ी इंडिया की क्या है अभी? नैनो है, वैगनर, ऑल्टो, वो भी नहीं है आजकल. चलो जो भी है, मान लो एक वैगनर, ऑल्टो, नैनो, उसको आप रांची से लेके अगर कश्मीर तक जाएंगे वो नहीं पहुंचाएगी आपको? पहुंचाएगी, पक्का पहुंचाएगी. हमें मर्सिडीज की जरूरत नहीं है. तो हमें पैसे के पीछे भागना भी एक लिमिट तक जरूरी है. पैसा हमें हैप्पीनेस नहीं देता, गोलगप्पे वाला. और कोई क्वेश्चन अभी बताइए, फिर आइंस्टाइन वाली बात मैं बताऊंगा. एनी अदर क्वेश्चन टिल नाउ? एनी अदर क्वेश्चन टिल नाउ? सोच लेना, अभी सोचो. हाँ, एक सवाल चाहिए. नेम, नाम? समीर. समीर. तो आपने अभी ओवर थिंकिंग के बारे में बताया. मेरा क्वेश्चन ये है कि हाउ टू ओवरकम ओवर थिंकिंग. हाँ, गुड वन. अभी हम बात कर रहे हैं तो एक कामनेस से जुड़ा हुआ है ना. अभी हमने बात की फिजिकल फिटनेस. जब आप 1 घंटा फिजिकल फिटनेस करते हैं, दौड़ लगाते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, तो आप टाइम पे सोएंगे. फिर आपका लास्ट सीन आता है ना 4:30 AM, वो नहीं आएगा. मैंने एक आर्टिकल लिखा, वेटिंग फॉर द ब्लू टिक्स. ब्लू टिक वो वाला नहीं, वेरिफिकेशन वाला, मुझे मिला हुआ है. लेकिन किसी ने देखा या नहीं देखा मेरा मैसेज, अभी तक मैं जागा हूं. उसने अभी तक लाइक नहीं किया फेसबुक पे. ये कोई वो नहीं है, ये चिंता व्यर्थ है. देयर इज नथिंग इन इट. ओवर थिंकिंग को अवॉइड करना, एक तो फिजिकल फिटनेस, एक मेडिटेशन ट्वाइस अ डे. सुबह थोड़ा थोड़ा उठते ही करो. इवन बिफोर यू गो टू द वॉशरूम, डू अ लिटिल बिट ऑफ मेडिटेशन. अगर आप YSS की टीचिंग्स को पढ़ेंगे तो बड़ा आसान हो जाए. नेक्स्ट, क्रिएटिव थिंकिंग. इस पॉइंट पे आ जाते. जो क्रिएटिव व्यक्ति है, रचनात्मक सोच जो रखता है, वो तो ओवर थिंकिंग ज्यादा नहीं करता, वो कंस्ट्रक्टिव है. आर्ट, फोटोग्राफी, राइटिंग पोएट्री, स्टोरीज, म्यूजिक, स्पोर्ट्स, ये सब क्रिएटिव है. और अकाउंट्स में जब हम हैं तो अकाउंटेंट को मतलब 2.4 into 2.4 तो एक ही जवाब आएगा. उसमें क्रिएटिविटी आप नहीं कर. मैथ्स में नहीं है. मैथ्स में है लेकिन वो एग्जाम्पल्स में है. टीचर जो मैथ्स के वो भी क्रिएटिव हो सकते हैं, लेकिन मैथ्स का रिजल्ट या कंप्यूटर पे जो आप फॉर्मूला लगाओगे तो एक ही रिजल्ट आएगा ना बात. जबकि आप जब पेंटिंग बनाओगे तो उसको बनाने के 150 तरीके, 500 तरीके हैं. जितने लोग हैं उतने ही पेंटिंग आएगी उस टॉपिक पे. तो क्रिएटिव थिंकिंग इज ओरिजिनल. अब कई बॉयज के हेयर स्टाइल बड़े फनी होते हैं आजकल, यहां पे भी हैं, मैं बात दिखाऊंगा नहीं, है ना. वो क्रिएटिव है, मैं तो उसको नंबर दूंगा क्रिएटिविटी के. हम लोग नहीं ऐसे हेयर स्टाइल बनाते थे, ना बना सकते. गर्ल्स को मना करते हैं. पूरे इंडिया में गर्ल्स के नहीं होते क्रिएटिव, बॉयज के होते. डिस्पैरिटी. लेकिन दैट इज ओनली ए माइनर एग्जाम्पल. अपनी लाइफ में ऑलराउंडर बनने के लिए एक हमें क्रिएटिव आउटलेट चाहिए. गिटार, हारमोनियम, बैडमिंटन, पोएट्री, कुकिंग, म्यूजिक, डांस, कुछ भी, आर्ट. मेरी एक टेडेक्स टॉक है जो इसी पे है. टेडेक्स स्पीकर लिखा हुआ है वहां पे. तो टेडेक्स टॉक है ऑलराउंडर होने. एक से ज्यादा है, देख लेना. मैं योगदा का डेब्यूटी हूं.
इसलिए मैं यहाँ आया हुआ था रांची, तो मैंने रिक्वेस्ट किया कॉलेज से कि मैं आपसे आके मिलूंगा और मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ और जगह भी जाता हूँ। मैं यहाँ आश्रम में आया हुआ था तो मैं आपसे मिलने आया, ये है, दिस इज द रीजन आई एम हियर। ठीक है, तो टेडेक्स टॉक तो आप फिर भी देख ही सकते हो कभी भी। तो आइंस्टाइन की स्टोरी से जो मैं बोल रहा हूं वो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा आपको। फॉर्मूला क्या है हमारा? पहले आइंस्टाइन की स्टोरी। आइंस्टाइन और ड्राइवर एक बार कई जगह पे जा रहे थे। एक जगह से दूसरी जगह पे लेक्चर देने आइंस्टाइन गए। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, E इज इक्वल टू MC E इज इक्वल टू MC स्क्वायर पे वो लेक्चर दे रहे थे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे, फेमस साइंटिस्ट। लेकिन 100 साल पहले ऐसी फोटो नहीं होती स्क्रीन के ऊपर, स्क्रीन ही नहीं होता था, है ना। अमेरिकन्स को वैसे भी थोड़ी जीके उनकी पुअर होती है। आप अगर पढ़ेंगे अमेरिका के बारे में, उनको ये पता है कि उनके पड़ोस में क्या हो रहा है, उनको ये नहीं पता कि न्यूयॉर्क में क्या हो रहा है। थोड़ा सा कम सोचते हैं, इंडिया में जीके ज्यादा है। तो क्या हुआ कि वो 25 शहर में उनको जाना था, 25 लेक्चर देने थे। जैसे ये हॉल है, ऐसे ही हॉल में उन्होंने एक लेक्चर दिया। ड्राइवर वही था, वो ड्राइवर जाके लास्ट में बैठ के उनका लेक्चर सुन रहा है, पूरा नोट्स ले रहा है, पढ़ा लिखा है। एक दिया, दूसरे दिन अगला, उसी दिन रात को वहीं रुक गए। He went to another city, then another city, then another city. He went to 24 locations till then. Okay? 24 cities, 24 locations. 24 times he delivered the same lecture. Theory of relativity. क्लियर हो गया? ड्राइवर साहब हर लेक्चर में पीछे बैठ के सुन रहे थे, कुछ बात नहीं किया उन्होंने आइंस्टाइन